Hello friends. Today we will discuss about the BARC Stipendiary Trainee 2 Category 1 Chemistry interview in the offline mode, which is conducted in the BARC main center that is situated in Trombe, Anusaktika Nagar. The place name is Anusaktika Nagar and it is situated in Trombe, which is little far from the Bombay town. And there was vacancy around 169, and they called the students around 700 from the BARC exam, which was held something 1 month 2 months before. And the interview is going on around 4 to 14 March, and my interview was on the 4th March, that is the first day of the interview. And basically I will share my experience for this interview, and it will also helpful for the students who are appearing for this interview in the upcoming days. And also it will helpful for the students who are appearing for the BARC OCES exam, and it will also, and there was also an interview in the offline mode. I will also appearing for this exam, and I will I will share my experience for this interview. At first there was some document verification, and all the documents xerox copy and the original copies we have to carry, and they will verify it in the 2 or 3 rounds. And if you have any documents left, then they will give an option to fill a form, and which tells that if you have not any documents in your if you not carry any documents, so you can submit that after the joining. If you join, then after the joining, if you can submit that documents, so that's not an issue. So basically we will talk about the interview. And there was five committee. In each committee there is 7 member, and the students called around 25 to 45 minutes interview duration, 45 to 50 minutes. So my interview was in the first half on day 1. So basically at first when I entered to the committee, and that is my committee was committee 1, and all the committees there are 7 member. And when I entered to the committee 1, and they all the committee, they make you feel better at first, and they will ask some comfortable question like where are you from, and when you come from at the Mumbai, and that's why, and what are you doing now. This is the question, basic question, that they will sure that you will make comfortable, or you will feel comfortable for the interview. So basically don't be afraid. And after that they will ask, some committees were asked for your favorite 5 topics or 5 chapters, something. And some committees are not asking. Again, there was some committee who were asking about the topics, but they were not asking the question from that topics also. That was happening. So there are different committee. According to the committee, there was different rules, and there were different types of questions. Hello. So now we will discuss about the question that they were asked in the interview. So at first they said that have you prepared for this interview, or have you prepared for some chapters for this interview? So I said that I have prepared actually all the physical chemistry, and basically the 5 chapters I have prepared total. So I have said that at first I said that thermodynamics. They give me a pen and paper. They said that you write your favorite chapters or topic. Then I write that at first thermodynamics, then after that chemical kinetics, at 3 reactive
reactive intermediate at 4 molecular spectroscopy, and at 5 coordination chemistry. Now they start to ask from thermodynamics at first, but it is not sure that in this 5 chapters they will ask the question. They can go beyond this 5 chapter, and it happens in all the committee. It happens. Some committee are never asking about the special topic. They are asking from anywhere from. Now they asked me from the question from thermodynamics at first. They asked that what is the first law? What is the first law? And how it is applied to industry, and what are the demerits of this law. So at first they asked that what is the first law, and then I said that the first law it tells about energy conservation, and the energy can convert from one form to another form, and this is mainly related to the heat, that is mainly related to the transformation of heat. So after that they asked that how it is applied to the industry, and what are the demerits of this law. What are the demerits of this law? So उन लोगों ने हिंदी में पूछा कि हाँ इसका आप डीमेरिट बताओ। तो मैं जब वो लोग हिंदी में पूछा तो मैं हिंदी में भी जवाब दिया, तो जब वो लोग इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में जवाब दिया। तो ऐसे बहुत उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में आंसर दे सकते हो, हम भी दोनों में ही पूछ सकते हैं आंसर। तो मैंने हिंदी में इसका जवाब दिया कि इसका डीमेरिट जो है कि द फर्स्ट लॉ में जो इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला, लेकिन किसी अगर रिएक्शन हो रहा है, सपोज A to B कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो हाउ मच हीट विल ट्रांसफर एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट द हीट विल transfer. So basically it not explained in the first law, and I have said that if a reaction I answered in this type that if a reaction A to B, then in this reaction के लिए इस रिएक्शन के लिए जो हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होगा या फिर कितना टाइम तक कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये इसके बारे में फर्स्ट लॉ हमें एक्सप्लेन नहीं करते। फिर उन लोगों ने पूछा तो कि फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं करते तो उसके लिए कौन सा लॉ आया ये एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने बोला सेकेंड लॉ। उसके बाद सेकेंड लॉ आया, तो सेकेंड लॉ अब उन लोगों ने उसके बाद वो सवाल को छोड़ दिया। फिर अचानक दूसरे जो पर्सन थे उन्होंने बोला कि हाँ किसी भी इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो कैसे डिनोट करते हैं हम। सो हाउ यू डिनोट द एफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजन। सो उन्होंने पूछा कि आप एफिशिएंसी को इंजन के किसी भी इंजन का आप एफिशिएंसी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे फार्मूला बोला कि लिख के दिखाओ कि कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने ऐसे फार्मूला में लिखा कि एफिशिएंसी इटा इक्वल टू आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। सो यही है बेसिकली द एफिशिएंसी का, जो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं किसी भी इंजन का, जो थर्मोडायनामिक इंजन होता है उनमें कितना वर्क हम आउटपुट जो वर्क होते हैं उनको इनपुट जो हीट होता है उनको डिवाइड करने से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी इंजन का। तो ये बोलने के बाद उन्होंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा कि सपोज तुम एक क्लोज सिस्टम लिए हो, दिस इज क्लोज सिस्टम, तो इसके अंदर HI गैस है, HI गैस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा,
व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं ऐसे 7 लोगों के सामने ऐसे घबरा गया कि ये इसका आंसर कैसे दूँ। तो डायरेक्ट ऐसे पूछा, उसका कुछ हिंट्स भी नहीं दिया कि इसका क्या हो सकता है, कि एक क्लोज सिस्टम के अंदर HI गैस है, अब क्या होगा तुम बताओ, क्या अप्रोच होगा, कि क्या हो सकता है। तो मैं पहले कुछ टाइम सोचा, उसके बाद उसके बाद मैंने बोला कि सर ये रिएक्शन जो होता है H2 + I2, उसके बाद HI फॉर्म होता है जो इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो एज ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जा सकता है। तो मैं इस टाइप का कुछ आंसर दिया। तो अब उन लोगों को ये पता नहीं है मुझे कि उन लोग क्या आंसर चाहते थे इस क्वेश्चन से, लेकिन मैं इस टाइप का आंसर दिया हूँ। तो उसके बाद इन लोगों ने इसको छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोल दिया तो उन लोगों ने डायरेक्ट काइनेटिक्स में घुस गए, यहाँ से काइनेटिक्स चले गए। अब काइनेटिक्स में ये पूछने लगे कि सपोज ये रिएक्शन जो है ये तुम्हें दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेट यू एज्यूम कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब तुम इसका जो ऑर्डर है वो तुम कैसे डिटरमाइन कर पाओगे एक्सपेरिमेंटली। तो उन लोगों ने इससे पूछा। तो मैंने इसका जवाब दिया कि सर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो इक्वेशन होता है कि जो t टाइम इक्वल टू 1/k ln A/A-x, इसका A है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और x इज द अमाउंट एक्टिवेटेड और अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड। सो मैंने बोला कि ये जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा टाइम के साथ, तो उसका प्लॉट करके हम लोग मैं इसका जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं और रेट कांस्टेंट से हम इसका ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे मैं बोला। फिर उन लोगों ने ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने डायरेक्ट मुझे ये सवाल पूछा कि सपोज उन लोगों ने पूछा कि जो प्रेशर कुकर होते हैं, उसके बाद सवाल आया क्वेश्चन 5 कि प्रेशर कुकर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रेशर कुकर। हाँ, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रेशर कुकर। तो मैंने बोला कि हाँ इसमें प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और उसके लिए प्रेशर इंक्रीज होते ही जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो इजीली बॉयल होता है। तो उन लोगों ने पूछा हाँ ठीक है, तो फिर तुम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख के दिखाओ। जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, फिर मैंने लिखा कि dP/dt इक्वल टू ∂H/T इंटू ∂V। अब उन लोगों ने बोला कि हाँ इस इक्वेशन से तुम ये वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करके दिखाओ जो प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल होता है, तो ये वाला एक्सप्लेन करो। मैंने वो स्लोप dP/dt का चेंज और इधर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है तो उसका चेंज मैंने एक्सप्लेन करके बोला कि हाँ ऐसे चेंज होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो एंथैल्पी चेंज होता है, तो इसलिए प्रेशर चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। ठीक है। तो अब उन लोगों ने बोला ठीक है, तुम अब वाटर का फेज डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ फेज डायग्राम ऑफ H2O। वाटर का फेज डायग्राम ड्रॉ करो एंड लेबल करो ऑल द फेज। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया फेज डायग्राम। इसमें P प्रेशर और इसमें इस एक्सिस में टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर। तो मैंने ये ड्रॉ किया कि
तो ये गैस, ये सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस। तो ये सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम लाइन है, ये लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम लाइन है, और ये सॉलिड गैस का इक्विलिब्रियम लाइन है। तो मैंने बोला कि इसको एक्सप्लेन किया कि ये ट्रिपल पॉइंट होता है और इसका इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड करते हैं। और इसके अब बोला, उन लोगों ने बोला कि हाँ, अब क्लॉसियस-कैल्कुलायरन जो इक्वेशन तुम लिखे हो तो उस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करो कि ये सारे लाइन के लिए सेटिस्फाई करो। तो मैं ये डीपी स्लोप से वो वाला जिसके सपोज वाटर के सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसके लिए डीपी कैसे होगा, डेल एज का चेंज कैसे होगा, तो ये सब एक्सप्लेन किया मैंने। लेकिन ये एक्सप्लेन करते टाइम थोड़ा बहुत मैं भी कन्फ्यूज हो गया, लेकिन एंड तक मैं एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत अच्छे से ही। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब उन लोगों ने पूछा कि कोऑर्डिनेशन में चला गया। कोऑर्डिनेशन में वो लोग पूछे कि सपोज एक रिएक्शन हो रहा है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का COH2O होल 6 ये +2, इसके साथ हम एमोनिया दे रहे हैं, एमोनिया लिगेंड दे रहे हैं, तो ये क्या होगा। तो इसका मैंने बोला कि कोबाल्ट हेक्सा एमोनिया कॉम्प्लेक्स होगा CONH3 होल 6 +2। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ ये होगा, लेकिन ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं सर, एक स्टेप में नहीं होगा, ये स्टेप वाइज रिएक्शन होगा। तो मैंने इसको हाँ बोला कि ये एसोसिएटिव होगा या डिसोसिएटिव होगा, ये एक्सप्लेन करो। फिर मैं इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाई एसोसिएटिव और व्हाई डिसोसिएटिव। तो मैं बोला कि ये सर और एसोसिएटिव क्यों होता है, डिसोसिएटिव क्यों होता है, कब होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया बताओ। फिर मैंने बोला कि अगर लिगेंड थोड़ा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो वो वाला ज़्यादा डिसोसिएटिव में फेवर करेगा, क्योंकि हिंडर्ड लिगेंड पहले निकल सकता है तो इसलिए डिसोसिएटिव में जाएगा, और इसमें थोड़ा हिंडर्ड कम है तो इसमें एसोसिएटिव जा सकता है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया बोलने के लिए बोला कि एसोसिएटिव कैसे होता है कि डिसोसिएटिव कैसे होता है। तो उन लोगों ने बोला कि अगर मान लो किसी रिएक्शन एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रहा है तो उसका इंटरमीडिएट कैसा होगा। तो मैंने बोला कि अगर एसोसिएटिव से गया तो एक 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसके बाद उसको वो रिमूव होके सब्स्टिट्यूट होके वो फिर से 6 कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। तो ये स्टेप वाइज होके जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि उसमें एसोसिएशन होता है, लिगेंड फर्स्ट एंटर करते हैं उसके बाद वो लिविंग लिगेंड निकलते हैं। तो इसलिए पहले 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद फिर से वो 6 कोऑर्डिनेटेड में आ जाते हैं। तो ये मैंने बोला। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि हाँ तुम MSc में क्या क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो और क्या क्या प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि हाँ ये सब प्रैक्टिकल किया। उसके बाद बोला कि तुम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए हो। तो मैंने बोला कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए हो तो लिखो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने बोला IR यूज किए, NMR यूज किए हैं, UV यूज किए, उसके बाद CV यूज किए हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा। तो उसके बाद उन लोगों ने पूछा हाँ IR के बारे में बताओ, IR का इंस्ट्रूमेंटेशन बोलो। इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा प्रिंसिपल कैसे होता है कि IR कब करते हैं हम लोग, तो इसके बारे में कुछ बताओ। फिर मैंने IR के जो सिंपल डायग्राम होता है कि लाइट सोर्स, उसके बाद जो सिंपल जो डायग्राम होता है तो उसको ड्रॉ किया, फिर उसको ये बताया। फिर बोला कि IR हम कौन से टाइप के सैंपल का करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैंने बोला कि सर सॉलिड और लिक्विड का हो सकता है, लेकिन गैस का मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं ऐसा, तो शायद गैस का नहीं हो सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों का हो सकता है, मैं सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही किया हूँ। बोला हाँ ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का IR के बारे में बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल का बताओ कौन सा, और CO2 मॉलिक्यूल क्यों IR एक्टिव होते हैं। तो मैंने नहीं पहले पूछा कि हाँ IR एक्टिव क्यों होते हैं कुछ मॉलिक्यूल। हाँ तो उन लोगों ने पूछा कि व्हाई मॉलिक्यूल्स
शोज आर एक्टिविटी। तो मैंने इसका आंसर दिया कि ये बॉन्ड वाइब्रेशन के लिए जो एक पर्टिकुलर रीजन का लाइट से उसका जो यानी मॉलिक्यूल का बॉन्ड का वाइब्रेशन होता है, और वो मॉलिक्यूल के अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए उसके बॉन्ड के वाइब्रेशन के टाइम। तो उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है, तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाइब्रेशनल मोड है तो वो सब मोड को बोलो, क्या क्या मोड है और उसका कौन सा आर एक्टिव है कौन सा नहीं है, ये सब बताओ। फिर मैंने इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोड है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग एंड 3 में बेंडिंग होता है। तो ये सब मोड का जो डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद बोला कि हाँ ये वाला सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होता है वो आर इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज 0 हो जाता है, और ये दोनों में आर एक्टिव होता है। ये सब बताया। उसके बाद बोला हाँ तो फिर ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोड है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये तो आर इनएक्टिव है, फिर हम इस मोड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हाउ वी डिटेक्ट दिस मोड as this mode is R inactive, so how we detect this mode? तो मैंने बोला कि सर ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो सकता है, रमन स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो आर इनएक्टिव है ये वाला मोड, लेकिन ये रमन एक्टिव हो सकता है। तो बोला क्यों रमन एक्टिव क्यों हो सकता है? तो मैंने बोला कि सर रमन एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल must have a change in polarizability, must have change in polarizability चेंज होना चाहिए जो इसके अंदर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में। हाँ तो मैंने बोला कि जो मॉलिक्यूल must have a change in polarizability, सो पोलराइजिबिलिटी चेंज हो रहा है इसमें, इसलिए इस मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा। तो अब उन लोगों ने पूछा कि ये पोलराइजिबिलिटी क्या है? तो मैंने बोला कि पोलराइजिबिलिटी ये जो बॉन्ड वाइब्रेशन के टाइम जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसका जो वाइब्रेशन के टाइम चेंज, क्लाउड का स्पेस है उसका चेंज होने का जो उसको पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। तो मैं इस पोलराइजिबिलिटी का एक पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड ड्रॉ करके वो एक्सप्लेन किया। पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड ड्रॉ करके हम इस मोड के लिए एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चेंज हो रहा है। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला ठीक है। अब उन लोगों ने पूछा कि हाँ तो मैंने वो पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड ड्रॉ करके वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं कि जो सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो आर एक्टिव मोड है वो रमन इनएक्टिव होते हैं, और रमन एक्टिव मोड है जो आर इनएक्टिव होते हैं। आर एक्टिव मोड रमन इनएक्टिव एंड रमन एक्टिव मोड आर एक्टिव। जो तो वो प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला कि सर प्रिंसिपल का नाम अभी इस मोमेंट में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं स्टडी किया हूँ तो इसको ये पता है मुझे, लेकिन इसका प्रिंसिपल का नेम मुझे अभी इस वक्त नहीं याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन लोगों ने एक जनरल सवाल पूछा कि सपोज XY = 50, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो मैंने इसको XY प्लॉटिंग किया। उसके बाद मैंने जो इसका तो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम कैसे होता है वो सब बता सकते कि कैसे ग्राफ बनते। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कि ऐसे एक ग्राफ होते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो उस टाइप का ग्राफ बनाने के बाद उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने कुछ जनरल सवाल पूछा कि हाँ तुम वो जो बार्क का जो और एक एग्ज़ाम होता है OCS, उसका फॉर्म फिलअप किए हो? तो मैंने बोला हाँ सर फॉर्म फिलअप तो किए हैं। तो वो वाला एग्ज़ाम दोगे ना? उन्होंने हाँ सर वो वाला तो देना होगा। तो सर ने बोला कि एक सर ने बोला तो वो वाला अगर तुम्हें मिल गया तो ये इसमें तुम ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा सा उससे लोअर है, क्योंकि ये साइंटिफिक असिस्टेंट है और वो साइंटिफिक ऑफिसर है।
तो मैंने बोला कि नहीं सर, साइंटिफिक असिस्टेंट से भी तो साइंटिफिक ऑफिसर हो सकते हैं ना। तो मैंने ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं, तो अगर ये होगा तो मैं कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन अभी कुछ ऐसे सोचा नहीं कि ये वाला होगा तो वो वाला नहीं करेंगे, कि वो वाला होगा तो ये वाला कर सकते हैं, तो ऐसे मैं सोचा नहीं। तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर हुआ